So, welcome everybody. We will be starting with the second part soon. Let's wait for 2 more minutes before we start with the thing. I suppose I am audible and the screen is visible to everybody. So, we were talking about the medical management part. It basically consists of oral AHAs, which are can be divided into two categories: primary agents and the secondary agents. Primary agents include ACE inhibitors, ARBs, means angiotensin receptor blockers, diuretics, mainly thiazide type. CCB stands for calcium channel blockers, and then secondary agents. These include beta blockers, direct renin inhibitors, diuretics, alpha blockers, vasodilators, and centrally acting drugs. So this is basically not in the preview of our physiotherapy practice. That's why I will not be talking in detail about these things, but you should basically know about what is the thing which are there and used to basically treat the hypertension. And these drugs can be either used in a single form or in combinations. So basically, medical people can are like more into this thing and let it be for their use only. So now, what are the implications for physio? So, due to high prevalence of hypertension, a physical therapist will routinely encounter patients with this disease. As we all know, I have told you like one in every three patients will be suffering from hypertension in Indian scenario. Okay, so it's very high prevalence rate, and so we will normally encounter at day-to-day basis at our clinics. Moreover, it is vital that we as a clinician understands the general mechanism of action and adverse effects surrounding hypertensive medications. So हमको पता होना चाहिए कि कैसे एक्ट करती हैं, उनके क्या एक्शंस होते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं. Just for the knowledge sake of thing. And it is very important to note that exercise may impact the pharmacokinetic and pharmacodynamic also. That is what the body does to the medication and what the medication does to the body. दोनों चीजें एक्सरसाइज के साथ में चेंज हो सकती है. So that's why it's important to not वी शुड नो कि इनसे क्या फर्क पड़ता है या क्या क्या चीजें साइड इफेक्ट दे सकती हैं कि नहीं दे सकती. सो दैट इज वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स. प्लीज म्यूट योर सेल्फ यार, आई एम गेटिंग डिस्टर्बेंस एट माई एंड. प्लीज. नाउ दिस टेबल इज शोइंग what are the effects of medications on hemodynamics, ECG and exercise capacity of the patient. So as you can see, beta blockers, this decreases the cardiac output or it may remain same with the exercise, or more importantly it decreases the heart rate at both rest and exercise. So अगर आप बीटा ब्लॉकर ले रहा है पेशेंट, so there are very high chances कि उसका heart rate जो होगा कम होगा. Same way में exercise capacity will also be reduced in case of beta blockers. ACE inhibitors जो angiotensin convertase enzyme inhibitor होते हैं, उसके साथ में similarly हार्ट रेट तो आपका सेम रहता है एक्सरसाइज के पे, बट इट इंक्रीजेस एक्सरसाइज कैपेसिटी इन केस ऑफ पेशेंट विद CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वेरापामिल की या डिजिटाकिम, तो एक्सरसाइज के साथ में कार्डियक आउटपुट को ये सेम रखेगा. बट आपके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं या फिर उसके साथ में सेम भी रह सकती है. तो
अवर केस के अंदर हार्ट रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज हम लोग जब एरोबिक एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग हार्ट रेट के बेसिस पे ही करने वाले हैं. सो वी शुड नो कि कहाँ पे कौन सा ड्रग होता है जो हार्ट रेट को अल्टर कर सकता है. सिमिलरली देयर आर सम अदर ड्रग्स लाइक वैसोडाइलेटिंग एजेंट्स, जो नाइट्रेट्स होते हैं. उसके केस में क्या होगा, एक्सरसाइज कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी इन पेशेंट्स विद एंजाइना. ठीक है, ब्लड प्रेशर तो ऑब्वियसली सब में ही डिक्रीज कर रहा है, बट नाइट्रेट्स आल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट बोथ एट रेस्ट एंड विद एक्सरसाइज. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट रेट जो है इंक्रीज कर रही है. सो यू कैन जस्ट लर्न अबाउट वेरियस ड्रग्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा ड्रग पेशेंट ले रहा है एंड कौन सी ड्रग से एक्सरसाइज कैपेसिटी पे पेशेंट को क्या इफेक्ट आ रहा है. ओके, सो व्हाट इज द नीड फॉर बिहेवियरल चेंजेस. हमें बिहेवियरल चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ती है जबकि हमारे पास मेडिकेशंस हैं वेरी इजी टू यूज, बट स्टिल वी विल नीड बिहेवियरल चेंजेस. व्हाई? बिकॉज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स आर कॉस्टली, सब जगह फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड रहती है. दे आर नॉट इफेक्टिव फॉर एवरीबडी, सब पे उतना इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं. देयर आर वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स दैट मे इम्पेयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड adherence to the drug therapy, and some abnormalities such as insulin resistance which may persist or even exacerbate with antihypertensive agents. So कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर कर रहे हैं पेशेंट की, या फिर कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं जो कि ये ड्रग्स लेने से बढ़ जाते हैं. जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर पेशेंट की बढ़ गई है, पेशेंट डायबिटिक है, तो शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा पेशेंट का. सो दैट इज अगेन हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो व्हाट इज अ रोल as a physio? We can help in exercise prescription both for prehabilitation and rehabilitation. This is, I am stressing again and again, prehabilitation is a very important part for prevention. जरूरी नहीं है कि आप वेट करो पहले होगा तब अभी हम ट्रीटमेंट देंगे यार. प्रीहेबिलिटेशन अगर आप कर पा रहे हैं पेशेंट की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टडी से भी प्रूव हुआ है कि द रिलेटिव रिस्क फॉर डेवलपिंग फ्यूचर हाइपरटेंशन इन लो फिटनेस सब्जेक्ट्स कंपेयर्ड विद द हाई फिटनेस सब्जेक्ट्स वाज 1.52%. यानी जिन सब्जेक्ट्स के अंदर फिटनेस लेवल लो रहता है, दे आर मोर susceptible to developing the hypertension. It's 1.52 ratio. Similarly, we as a physio can help the patient in weight loss and obviously the patient education. Okay, now coming to the ACSM recommendation for health screening before starting the exercise. हम लोग बोलते हैं देखिए, तो मेडिकल कंडीशन है तो पहले मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, तभी पेशेंट एक्सरसाइज करे. उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट उसको इग्नोर करते हैं या फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. उसी के लिए क्या हुआ, ACSM ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जो जो लो रिस्क कैटेगरीज में फॉल करते हैं, दे कैन स्टार्ट एक्सरसाइज विदाउट टेकिंग इनटू लाइक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेशन के बिना भी वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो what they are stressing, exercise is great for most people and we want people to exercise more and more. Okay, so what is the big change? Most people can exercise without visiting a doctor first, and but there are three major points which we have to consider before starting or prescribing an exercise program. What are those? Current activity level, patient पहले से कोई एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्टेन डिजीज, कोई उसको पेशेंट को साइन या सिम्टम तो नहीं है किसी भी CVD का, या फिर आपने क्या एक्सरसाइज इंटेंसिटी पेशेंट के लिए प्लान की है, वाइल माइल्ड मॉडरेट कौन सी आप प्लान कर रहे हैं. ओके, बट अगेन यहाँ पे क्या बात आती है, लाइबिलिटी इश्यूज की. देखिए लाइबिलिटी इश्यूज तो अगर पेशेंट आपके साथ में एक्सरसाइज कर रहा है तो हमेशा रहेंगे. अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि ACSM ने रिकमेंडेशन दे दिया तो आप फ्रीली जो मर्जी करो, नहीं. बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल आप लायबल रहेंगे. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू use reasonable care when you are training a client. And moreover, as always, any individual assumes there is some risk with regard to fitness under the guidance of a fitness professional, and waivers and releases can limit future liabilities. So आपको liabilities को अपनी consideration में लाना है, and depending on the जो भी practice आप कर रहे हैं, जिस scenario में आप कर रहे हैं, आप वहाँ के accordingly उसको decide कर सकते हैं. So the new exercise participation health screening recommendation are not a replacement for sound clinical judgment. जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज ये लिखी है कि आपको अपनी क्लिनिकल जजमेंट को रिलाई करना है. आपको अगर लग रहा है कि पेशेंट को मतलब क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी तो रेफर द पेशेंट. ऐसा नहीं कि सिंपली आप बोले गाइडलाइंस तो बोल रही है यार कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं. जस्ट फॉलो योर क्लिनिकल विजडम एंड योर क्लिनिकल जजमेंट. ओके, और केस बाय केस बेसिस पे आपको ये प्लान आउट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग? दिस इज फॉर 2015 एंड बियॉन्ड. अब सबसे पहले क्या बोलेंगे, जो हमने बात की थी 3 पॉइंट्स की, क्या क्या थे? प्री पार्टिसिपेशन का फिटनेस लेवल क्या है पेशेंट का,
So does the individual currently exercise regularly or not? अगर तो पेशेंट पहले से एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो देन जस्ट कमिंग टू दिस साइड, यस, अगर पेशेंट पहले से एक्सरसाइज कर रहा है तो देन सिनेरियो बीन does she or he have cardiovascular, metabolic or renal disease or sign or symptoms that suggest she does, यानी पेशेंट को कोई नॉन डिजीज पहले से है कि नहीं है, अगर तो नहीं है देन नो मेडिकल क्लियरेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर मॉडरेट टू विग्रस एक्टिविटी लेवल, ठीक है। बट अगर पेशेंट को पहले से है, उस केस में क्या करना है, यू हैव टू जस्ट डिसाइड कि whether he or she have known but asymptomatic disease, अगर ऐसा होता है पेशेंट को पता है बट एसिम्टोमेटिक यानी कोई सिम्टम नहीं है उस डिजीज का, उस केस में नो मेडिकल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू मॉडरेट एक्टिविटी, ठीक है। एकदम से आप विग्रस एक्टिविटी नहीं कर सकते बट मॉडरेट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं एंड दैट कैन बी ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द विग्रस एक्सरसाइज, ओके। बट पेशेंट को अगर इस केस में नो होता है, यानी पेशेंट को नॉन डिजीज है बट उसको एसिम्टोमेटिक नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यू हैव टू सी वेदर ही और शी हैव साइंस और एनी सिम्टम दैट आर सजेस्टिव ऑफ एनी कार्डियोवास्कुलर, मेटाबॉलिक और रीनल डिजीज, अगर ऐसा कुछ साइन और सिम्टम सजेस्ट कर रहा है देन यू कैन डिसकंटिन्यू विद एक्सरसाइज एंड सीक मेडिकल क्लियरेंस, बट अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है देन you can gradually progress to the vigorous exercise but start with the moderate level activity. अब सेकंड सिनेरियो कि पेशेंट करंटली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो, जो हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट आएंगे इसी चीज के आएंगे कि पेशेंट इज नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज प्रीवियसली, सो वहां पे भी सेम थिंग, does he or she have any cardiovascular, metabolic or renal disease or any sign or symptom that suggests so, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना होगा, सॉरी just wait for a while. Are you able to see the screen? Okay, अगर पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है पहले से देन लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी के लिए आपको कोई एक्टिविटी की जरूरत, क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द विगरस एक्सरसाइज बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस. पेरियन लाग जाए, पेरियन लाग जाए. हाँ चावला वाली सब्जा पे दुपट्टे बांध जा मुंडा कर. Are you people able to see the screen? Is my screen visible to everybody? Is the screen visible? Okay, just wait for a while. I am starting the sharing again.